السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت داخلہ اور TLP کے درمیان بات چیت کامیاب۔ اعلامیے کے مطابق TLP نے 1 مئی 2025 کو ہونے والا احتجاج ملتوی کر دیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کے روایتی بیانیے کی پیروی کی جائے۔ فلسطین کے لیے کی جانے والی حکومتی کاوشوں کی حمایت میں TLP امدادی سرگرمیوں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لے گی۔ حکومت پاکستان غزہ میں مظالم کے خاتمے کے لیے اسلامی ممالک بالخصوص سعودی عرب، مصر، اردن، قطر اور ترکی سے رجوع کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ TLP اور وزارت داخلہ میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور خطاب کر رہے ہیں۔ مسئلے کا فوری حل ممکن بنایا جا سکے اور ہر حاجی کو عزت، سہولت اور مکمل رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ ہر حاجی کو ایک خصوصی سم کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے جس میں ایک جدید اپلیکیشن موجود ہے۔ مینا یا دیگر مقامات پر راستہ بھولنے کی صورت میں یہ ایپ رہنمائی فراہم کرے گی۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے حجاج کو ہر ممکن سہولت دینا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک انتظامی کامیابی نہیں بلکہ ایک روحانی خدمت ہے جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے تمام اداروں بالخصوص سول ایوییشن، FIA، وزارت مذہبی امور اور ان کی تمام ٹیموں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی شبانہ روز محنت کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ میں سعودی عرب کے معزز سفیر جناب نواف بن سعید المالکی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستانی حجاج کرام کے لیے سہولیات کی فراہمی اور ہر منصوبے کی کامیابی پر بھرپور دلچسپی اور ذاتی توجہ دی۔ ان کی مسلسل رہنمائی، تعاون اور خلوص کے بغیر روڈ ٹو مکہ جیسے اہم اور تاریخی منصوبے کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستانی قوم ان کی خدمات کو دل سے سراہتی ہے اور انہیں محبت، اخوت اور بھائی چارے کی علامت سمجھتی ہے۔ محترم حجاج صاحبان، آپ صرف اللہ کے مہمان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سفیر بھی ہیں۔ سعودی قوانین، ضوابط اور ثقافت کا بھرپور خیال رکھیں۔ اپنی عبادات اور دعاؤں میں ملک عزیز پاکستان کو نہ بھولیں۔ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے برسوں میں ہر سال عازمین حج کے حجاج کے لیے سعودی حکومت نے بہت زیادہ سہولیات فراہم کی ہیں، اور وہاں پر جو ایک قواعد و ضوابط انہوں نے رکھے اور جو قانون ہے اس کا ہر حاجی کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی قسم کی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی بھی سہولیات وہاں دی جا رہی ہیں وہ ہمارے حاجیوں کی بہتری کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے دی جا رہی ہیں۔ ہمارے سعودی حکومت کے ساتھ، سعودی عوام کے ساتھ ایک دلی تعلقات بھی ہیں اور قیامت تک یہ ہمارا ایک رشتہ ہے۔ یہ انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ حرمین شریفین جو سعودی عرب میں ہیں اور ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ وہاں دھڑکتے ہیں، حرمین شریفین میں دھڑکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے۔ جتنے بھی ہماری خواتین حضرات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں، جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی ہے، پاکستان کے لیے بھی، سعودی حکومت کے، سعودی عوام کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے پورے عالم اسلام کے لیے بھی دعا ضرور فرمائیں۔ آخر میں، جس طرح کے بہت سارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں
اور خاص طور پر ہمارے سفیر صاحب بھی، باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ کو رخصت کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور باعزت طریقے سے انشاءاللہ آپ کو رخصت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو وزارت مذہبی امور ہے وہاں پر بھی آپ کا خاص خیال رکھے گی، اور واپسی پر بھی انشاءاللہ آپ کو خوش آمدید بھی کہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ اس سعادت سے نوازے جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ حج کر سکے، عمرے کر سکے۔ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سہولیات فراہم کیے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک سعودی دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کہ وزیر مذہبی امور تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام حجاج کرام سعودی قوانین کی بھرپور طریقے سے پاسداری کریں اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور اس سعادت سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شک ہم یہاں پر رہتے ہیں لیکن ہمارے دل حرمین شریفین میں دھڑکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی قوانین کی پاسداری بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ آپ پاکستانی ہیں اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کریں اور اپنے پاکستانی ہونے کے ناطے تمام قوانین کی پاسداری کریں۔ انہوں نے حج اپلیکیشن کی بھی اشاعت کی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ حج اپلیکیشن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل نے دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ CCI کی رضامندی کے بغیر کوئی نہریں تعمیر نہیں ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے نئے نہری منصوبے باہمی اتفاق رائے کے بغیر نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام صوبوں کی مشاورت سے طویل المدتی زرعی اور آبی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ ملک کی غذائی اور ماحولیاتی سلامتی کے لیے نئی کمیٹی بنانے اور CCI سیکٹریٹ کے بھرتی قوانین سمیت مختلف سالانہ رپورٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور امیر مقام شریک ہوئے۔ کونسل کے اجلاس میں 25 افراد نے خصوصی دعوت پر شرکت کی۔ 7 فروری کے ایکنک کے نہروں کی منظوری کے فیصلے کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نہروں کا معاملہ پورے ملک کے لیے اہم تھا۔ طے ہو گیا تھا کہ جب تک اتفاق نہیں ہوگا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ اتفاق رائے کے بغیر کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ 1991 کے پانی کے معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پانی کا معاملہ باہمی رضامندی سے حل کیا جائے گا۔ پلاننگ ڈویژن اور ارسا کو تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا کہا گیا ہے۔ راول بھٹو زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک ملاقات کی۔ ملاقات میں میں بھی موجود تھا۔ جب تک باہمی اتفاق نہیں ہو جاتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی کہ وفاقی حکومت کوئی بھی نئی نہر نہیں بنائے گی جب تک باہمی اتفاق CCI میں نہ ہو جائے۔ واٹر اکارڈ 1991 جس میں صوبوں کے حقوق شامل ہیں اس پہ مکمل طور پہ عمل کیا جائے گا۔ The council decided that provisional ethnic approval dated 7 فروری 2024 for constructing of new canals and ارسا کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 17 جنوری 2024 کو، یہ دونوں واپس کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے کینال منصوبہ مسترد کر دیا۔ صوبے کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے۔ صوبے کے مسائل پر بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سندھ کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، ارسا سے خط واپس لے لیا گیا ہے۔ تمام صوبوں کو پانی کے حقوق دیے جانے کے حق کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10ویں اور 11ویں NFC ایوارڈ کا ایک آئینی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ٹوبیکو بطور زراعت ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ایک کیش کراپ ہے اور اس سے ہمارے صوبے کو 100 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کو انہوں نے وڈرا کر دیا ہے۔ تمام صوبوں کو اپنا پانی کا جو حصہ دیا گیا ہے، اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ اپنا اسی طریقے سے ہر صوبے کو دیا جائے گا۔ کسی صوبے کی کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو وہ بیٹھ کے اس کو مفاہمت سے حل بھی کریں۔ 10ویں
और 11वीं जो है एक आईनी मसला है वो तो हल होगा, लेकिन रिवीजन हो रही है जिसमें मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमें अपना हक अब दिया जाएगा। टोबैको जो है डिवॉल्व होने के बाद 18वीं तरमीम में टोबैको जो है वो एज अ क्रॉप जो है वो हमें नहीं दिया गया था, और एक कैश क्रॉप थी जिससे 100 ऑफ बिलियंस 100 अरब रुपए का हमारे सूबे को एक फायदा होना है, और वो हमारा आईनी हक है जो आज तक नहीं मिला था। पीर पगारा ने सिंध में नहरें निकालने के हुकूमती फैसले को सिंध के अवाम की तारीखी जिद्दोजहद की कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंध के बाशऊर अवाम ने बेमिसाल एहतजाज करके अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। पीर साहब पगारा ने मजीद कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरा पाकिस्तान फौज के शाना बशाना खड़ा है। मोदी सरकार अगर जाहिरियत करे तो पाकिस्तान की अफवाज अपने कौम के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगी। पीर पगारा ने नहरों के मामले को सिंध की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल होने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ आबाद नंबर 2 आटू भान रोड पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से जारी है, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्बास अली वाहिद डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 ऑटोबान रोड पर, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से इंक्रोचमेंट 8 घंटे से जारी है। इस वक्त भी जो गैर कानूनी तामीर प्लाजे हैं उसे मस्मार किया जा रहा है। इस वक्त भी मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन मौजूद, उनसे बात करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ऑटोबान रोड पे अनफॉर्चुनेटली फ़ेज़ 2 के दरमियान एक ऐसा बॉटलनेक आ गया था जिसकी वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो गया था। मल्टीपल कोर्ट्स में लिटिगेशन फेस करनी पड़ी। जो भी इंक्रोचर्स थे उन्होंने अननेसेसरी स्टे ऑर्डर्स लेकर रखे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे। आज एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल की जानिब से, जिसमें ये मुख्तस कर दिया गया है कि ऑटोबान रोड की जो विड्थ है वो 150 फीट 150 फीट है, 75 फुट आइदर साइड्स पे इसमें। तो आज जब ये फ़ैसला हुआ है तो उसमें ये भी तय पाया गया है कि जितने भी प्लाजे और स्ट्रक्चर्स ऑटोबान रोड की राइट ऑफ वे पे वो गैर कानूनी हैं, उनको गैर कानूनी तौर पे तामीर करने दिया गया, और उसमें से जिसको भी जो लीज़ दी गई वो फ्रॉडुलेंटली और बोगसली प्रिपेयर की गई, और उस तरह की जितनी भी लीज़ थे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो ख़त्म कर दिए गए। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की गुफ्तगू सुनी। उनका यही बताना है कि ये जो लतीफ़ाबाद नंबर 2 ऑटोबान रोड है ये एक कमर्शियल एरिया है, और यहाँ पर जितने जो गैर कानूनी प्लाजे तामीर हैं उसकी जो है उसकी इंक्रोचमेंट की जा रही है, और 8 घंटे गुजर चुके हैं। 7 से 8 प्लाजा ऐसे हैं जिसे मस्मार किया जा रहा है, और इस वक्त भी जो है इंक्रोचमेंट टीम जो है वो मस्मार करने में मसरूफ़ है। जी, सोशल मीडिया पर भारत के झूठे बयानिए के खिलाफ भरपूर जवाब पर भारत बौखला गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करना हमारे बयानिए के सच की फतेह है। कहा कि भारत की तरफ से फौरी जंग का खतरा है। पाकिस्तान जौहरी हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसका वजूद खतरे में होगा। मुसल्लह अफवाज ने मुमकिन जंग के बारे में हुकूमत को ब्रीफ कर दिया है, और इस सूरत हाल में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयार कर लिया गया है। LOC पर पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बड़ी तादाद में तैनात हैं। दोनों जानिब अफवाज आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। अगर कोई टकराव होता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के बिलवास्ता या बिला वास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालसी की पेशकश के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने तो पहले भी कहा है कि उसकी तहकीकात किसी न्यूट्रल फोरम से करवा ली जाए, और ऐसा आज़ाद फोरम जिस पर हमें और भारत दोनों को एतबार हो, चाहे वो हमारे मुश्तरका दोस्त हों या कोई इंटरनेशनल फोरम हो या 4-5 ममालिक का कमीशन बनाकर तहकीकात करवा लें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन को तैयार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मोदी अपने पार्टी मुफादात के लिए भारतीय मुसलमानों खुसूसन कश्मीरियों को कुर्बानी का बकना बना रहे हैं। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है और पाकिस्तान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक सिंध तास मुआहिदे का ज़ामिन है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के झूठे मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए कत्लगाह बन चुका है। उन्होंने पूछा कि सयाहों की हिफाजत के लिए भारतीय फ़ौज कहाँ थी। जान चुकी है कि दुनिया भर के अंदर
तुम्हारी दहशत गर्दाना नेट्स मौजूद हैं। लिहाजा दुनिया ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया, तुम्हारे झूठ का साथ नहीं दिया, और ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक हैं। कहा जाता है कि जी हमने सिंध ताश का मंसूबा जो है उसको मुअत्तल कर दिया। किस तरह तुमने मुअत्तल कर दिया? किस अथॉरिटी के तहत तुमने मुअत्तल कर दिया है? ये मेरा और आपका मुआहदा नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, इसके अंदर और भी इदारे मौजूद हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यह इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। हिंदुस्तान के लिए झूठ बोलना कोई नई बात नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के वो तजुर्बाकार हैं। 2000 में भी जंगी सूरत हाल पैदा की गई थी और तहकीकात हुई। इंडियन अफसरान ने तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन हुकूमत का इकदाम था और वाक़े के फ़ौरन बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया आपके ड्रामे के स्क्रिप्ट को अच्छी तरह जानते हैं और इस हमले को मोदी हुकूमत कश्मीर पर अपने जालिमाना कब्जे के लिए जवाब बनाना चाहती है। इंडियन हुकूमत दरअसल सिंध ताश मुआहदे को ख़त्म करना चाहती है। कनाडा में 45वें जनरल इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। इस बार 60 से ज़ायद पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जनरल इलेक्शन में 2 करोड़ 70 लाख अफराद को वोट का हक हासिल इस्तेमाल होगा और लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों में सलमा जाहिद, इकरा खालिद और शफकत अली समेत दीगर उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 8 मिलियन कैनेडियन शहरी वोट का हक इस्तेमाल कर चुके, जबकि पोलिंग का सिलसिला अभी भी तक जारी है। मजीद तफसीलात आपको बताएं कि कनाडा में 45वें जनरल इलेक्शन का आगाज हो गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला करने वालों की तफसीलात सामने आ गई हैं। 41 साला अंकित लव सादिक खान के मुकाबले में मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह अंकित लव ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के मुकाबले में 4941 वोट लिए और वो वन लो पार्टी की तरफ से इलेक्शन में शामिल हुए थे। वन लव पार्टी अंकित लव के बानी हैं और अंकित लव भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर खातून जय माला के बेटे हैं। अंकित लव बरतानिया में मुतादिद इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं और उनके वालिद भी भारतीय वकील और सियासतदान हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तालीम, तिब, सियासत और ख़ास तौर पर बिजनेस में कई खवातीन ने नुमायां कामयाबियां हासिल कर रखी हैं। बरतानिया में मुकीम खवातीन न सिर्फ अपने ख़ानदानों का सहारा बनी हैं बल्कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी का फ़ख्र भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खवातीन का कामयाबियों के हवाले से ओल्ड हम में देखते हैं इसहाक चौधरी की रिपोर्ट। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार के मैदान में कई पाकिस्तानी खवातीन ने पहचान बनाई है। खवातीन रेस्टोरेंट्स, फैशन ब्रांड्स, ब्यूटी सैलून्स और IT स्टार्टअप्स जैसे मुख्तलिफ कारोबार की हामिल हैं, जिनकी मेहनत, विजन और जदोजहद दीगर खवातीन के लिए मिसाल है। ओल्डहम की मुतहरिक खवातीन समीना सगीर और यास्मीन आलम ने सिंगल पेरेंट खवातीन को मुआशरे में फाल किरदार अदा करने और अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर काम किया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी खवातीन छोटे बिजनेस से न सिर्फ घर चला सकती हैं बल्कि दीगर खवातीन को रोजगार भी फराहम कर सकती हैं। आपके पास जिस तरह का भी स्किल है, आप अपने उस स्किल को यूज करें, घर में उसको वेस्ट ना करें। और आजकल के दौर में जितना जदीद दौर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि औरत जो है वो घर में सिर्फ जो है ना बंद होकर रह सकती है। औरतों को मर्दों के शाना बिशाना काम करना चाहिए और हर फील्ड में इस वक्त औरत काम कर रही है। तो जितनी भी औरतें, हर औरत के पास जो है एक डिफरेंट तजर्बा होता है, एक डिफरेंट जो है उसका शौक होता है। तो अपने शौक को ज़रूर जो है ना एक ख्वाब को ताबीर दें, दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो भी इस तरह के काम करें। और हमें देख के बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी ऐसे ही करें। जब से हमने हाइक स्टार्ट की थी और बात करना शुरू की थी तो इतने लोग हमारे साथ इस चेन में चले। हर औरत को अपना ख्याल करना आता है और वो करती भी हैं, और लेकिन क्या होता है कि वो जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं तो वो फिर अपना ख्याल करना छोड़ देती हैं। और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। हमारी सब लेडीज़ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम करके मुआशी तौर पर मजबूत और मुआशरे के मफीद शहरी का किरदार अदा कर रही हैं। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, ओल्डहम, मैनचेस्टर। मशरक़ी लंदन में मरहूम सलीम यासीन की याद में T10 लीग का इनेकाद किया गया। 7 क्रिकेट लीग की जानिब से मुनक़िदा T10 लीग में हॉन्सलो लिपर्ड्स ने कामयाबी हासिल की है, जबकि लंदन रेड बॉल क्लब दूसरे नंबर पर रही है।
लंदन से इमरान राजा की रिपोर्ट। 7 क्रिकेट लीग ने सलीम यासीन T10 मेमोरियल कप का इनेकाद किया। फातिह टीम हॉस्टो लेपर्ड्स टहरी, जबकि लंदन रेड बॉल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। 7 लीग के चेयरमैन अबरार मीर ने टीमों और मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सलीम यासीन मरहूम की कम्युनिटी और क्रिकेट के हवाले से खिदमात काबिल सताइश हैं। आज का टूर्नामेंट इन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया। यासीन साहब की खिदमात सबके सामने है जी, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, उनकी कम्युनिटी में बहुत सर्विसेज हैं स्पोर्ट्स के लिए, और यहाँ जो हम खेल रहे हैं जहाँ पे, ये ग्राउंड उनका आइकॉन था और यहाँ पे बड़े बड़े फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले हुए हैं। आज स्वर्ण लीग के तहत हमने उनका एक मेमोरियल T10 टूर्नामेंट करवाया है और आज ही ये फिनिश होगा। और हमारा मकसद ये है कि क्रिकेट के लेजेंड्स को जो है ना ऑनर करें और पॉजिटिव क्रिकेट के लिए लोगों को इंस्पायर करें। वी लीड द वे, अदर्स टू फॉलो। बड़ी अच्छी बात है जी, हर दिल अजीज़ शख्सियत जो इस दुनिया में नहीं रही, सलीम यासीन साहब हमेशा वो हर क्रिकेट ग्राउंड में हमारे साथ शाना बशाना होते थे। और अब ये क्रिकेट का आगाज़ है, सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आप देखें गहमा गहमी है, बहुत से क्लब्स आए हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है और ये बड़ा एक यादगार दिन है सलीम यासीन साहब के। इस साल जो स्टार्टिंग में ये टूर्नामेंट हो रहा है और हम इन कमेटी को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने उन्हें याद रखा है, और इंशाल्लाह इसी तरह के टूर्नामेंट होते रहेंगे। और बाकी बात यही, नौजवानों को, अगर नौजवान ग्राउंड में आएंगे तो डेफिनेटली अस्पताल वहाँ पे वीरान होंगे, ग्राउंड आबाद होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इसी तरह जो भी है इनकी कोशिश है इसको आगे बढ़ाते हुए जितने भी मैचेस करवा सके सलीम यासीन साहब के नाम, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे बढ़ा के कराते रहेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से ये कि ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है ये सलीम साहब की मेमोरी के लिए किया गया, और वो एक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने काफ़ी सारे जो क्रिकेट को फ़रोग़ दिया है UK में, और काफ़ी सारे नौजवानों को उन्होंने क्रिकेट की तरफ राग़िब किया है। उससे ये फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स में आने की, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बजाय इसके कि स्ट्रीट्स के ऊपर गैंग्स और ड्रग्स के अंदर हो जाके इन्वॉल्व हो, वो बेटर है कि अपना टाइम स्पोर्ट्स की तरफ करे। और इससे ये कि न्यू यूथ में पहली बात तो ये कि उनकी सेहत ठीक रहेगी, दूसरी बात है कि क्राइम्स में जो है ना इतने ज़्यादा वो नहीं होंगे इन्वॉल्व। थैंक यू वेरी मच। अबरार मीर ने कहा, हर साल सीजन का आगाज सलीम यासीन मेमोरियल कप टूर्नामेंट से होगा। 7 लीग T20 लीग का नाम तब्दील करके सलीम यासीन T20 लीग रख दिया गया है। आज का जो टूर्नामेंट हो रहा है बेसिकली सलीम साहब की याद में कह लें या उन्हें राज तहसीन पेश करने के लिए किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी उनकी क्रिकेट के लिए और स्पेशली स्वर्ण क्रिकेट के लिए भी, और बेसिकली आज का मकसद उनके बारे में ही है सारा। बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं इस किस्म के टूर्नामेंट। ऑब्वियसली यंग प्लेयर बजाय स्ट्रीट पे फिरने के क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को एंजॉय करें, डिसिप्लिन सीखें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट स्पेशली UK में यहाँ पे, और उसकी याद में हम ये आज खेल रहे हैं T10 कप। और ये क्रिकेट उन्होंने मुतारफ़ कराया है यहाँ पे इंग्लैंड में एशियन कम्युनिटी के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे यंग लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं जिससे वो बाकी गलत एक्टिविटी से उनसे बचाव हो जाता है उनका। इस मौका पर वसीम रजा वाइस चेयरमैन एलीट डेविस लीग, शाहिदुल आलम रतन चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल किड्स, अमजद खान चेयरमैन BCL और आमिर खान ओवरसीज डायरेक्टर एलीट डेविस ने खिलाड़ियों में मेडल्स और विनर्स और रनर अप में ट्रॉफियां तकसीम की। अबरार मीर चेयरमैन 7 लीग ने मेहमानान में मेडल्स तकसीम किए। अंपायर कबीर शाह को भी सलीम यासीन टूर्नामेंट का मेडल दिया गया। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद को खुशहाल करार देते हुए कहा, आज अच्छा खेल देखने को मिला। ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों के फरोग में मदद मिलेगी। इमरान राजा, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन। पाकिस्तान के मशहूर अदीबों, मुफक्किरीन, डॉक्टर्स, फिल्म साजों, सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाली शख्सियात के मज़ामीन के मजमुआ पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रहनुमाई पाकिस्तानी सफारतखाना अबूधाबी में मुनक़िद हुई। दुबई से देखते हैं अरशद मलिक की रिपोर्ट। तकरीब रहनुमाई में कई अदबी शख्सियात, सफारतकारों और पाकिस्तानी बरादरी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। अबूधाबी में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमजी भी इस मौका पर मौजूद थे। पैनलिस्ट में जैन सईद, अंबर जफर खान और सबा करीम खान शामिल थे, जबकि खुरम कुरैश ने तकरीब की नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। खालिद अनम, उमर शाहिद हामिद, ओवैस खान, अली खान, मोहम्मद अली बंदियाल समेत पाकिस्तान के मशहूर अदीबों, मुफक्करों, डॉक्टर्स, फिल्म साजों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाले अफराद के मज़ामीन के मजमुआ पर मुश्तमिल किताब को सबा करीम खान ने मुरतब किया। इस मौका पर पैनल मुबाहसा में किताब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। सफीर फैसल नियाज ने तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पढ़ने के लायक किताब मुरतब करने में पैनलिस्ट के ताउन को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सफीर फैसल नियाज ने कहा, यह किताब मोहब्बत, लगाव और हिम्मत की कहानियां पेश करती है। सफीर ने पाकिस्तानी मुसन्निफीन और पब्लिशर्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी अबूधाबी बुक फेस्टिवल समेत मुख्तलिफ कुतब की नुमाइशों में शिरकत करें ताकि फन और अदब के जरिए पाकिस्तान के मुतदिल तशख़्ख़ुस को फरोग दिया जा सके।
قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر برمنگھم میں ہنگامی اجلاس اور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ۔ چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ راجہ محمد اشتیاق کی قیادت میں اجلاس اور ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر برمنگھم اور گردنواز سے مختلف مکاتب فکر کے حامل افراد نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس اور ریلی کا مقصد بھارت کی جارحانہ کارروائیوں اور آبی دہشت گردی کی مذمت کرنا اور پاک فوج، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی تائید و حمایت کی تجدید کرنا تھا۔ منتظمین کا کہنا تھا خود کو جمہوری ملک کہلانے والے بھارت کا رویہ انتہا پسندانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یہ جو آبی جارحیت کا اعتکاف کیا ہے اس نے انڈیا نے، ہم اس کی بھی مکمل طور پہ کنڈمنیشن کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کے آئے اور دونوں قوموں کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ منتظمین کا مزید کہنا تھا بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کرتا رہتا ہے، جبکہ موجودہ بھارتی حکومت خود امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں سکھ رہنماؤں کے بھیمانہ قتل اور پاکستانیوں کشمیریوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور سازشوں میں ملوث ہے۔ بھارت نے جو 22 اپریل کو جو پاکستان پر الزام لگایا دہشت گردی کا، ہم پوری قوم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے دنیا بھر میں ہر پاکستانی اس وقت فکر مند ہے اور ہر پاکستانی صبح شام پاک فوج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر لمحہ ہر فکر ان کے ساتھ ہے۔ اور کشمیر کے لیے ہم سب کو چاہیے اس وقت تمام اپنے گروہی اور اپنے اختلاف ایک سائڈ پر رکھ کر پاکستان کی خاطر، پاکستان حکومت کی خاطر، پاکستان عوام کی خاطر، پاکستان فوج کی خاطر ایک ہو جائیں۔ ریلی کے اختتام پر امن و استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔